ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਸ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੌੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਕੜੀ ਜੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਚਲੋ ਸਭਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2 ਟੋਕਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2 ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਜੰਜੜ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਠਾਈ ਮੁੱਕੀ, ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੱਚਦੀ, ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੱਪਦੀ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛੜਾ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਓਏ ਰੱਬਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਧਮਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਛੜਾ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ ਚੈਨ ਛਬੀਲਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾਚੂੰਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲਮਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾਚੂੰਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋਰ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੀਓ ਚਾਚਾ, ਹਾ ਹਾ ਚਾਚਾ, ਨਾਚੋ ਦਾਦੀ ਨਾਚੋ ਦਾਦਾ, ਜੀਓ ਦਾਦਾ, ਨਾਚੋ ਚਾਚਾ, नाचो चाची, पाजो चाचा, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, तो सुनो एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि लड़की की बच्ची की रजामंदी थी, ज़बरदस्ती निकाह हुआ है ये। क्योंकि पहले भी एक निकाह, पहले भी एक मंगनी इनकी बचपन की हुई थी तो उस लड़की ने जवाब दे दिया था। मैं कहा था ये पागल मेरे लिए रह गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को ऐसा बच्चा ना दे। हमारी तो दुआ यही है, वो बड़ा मासूम बच्चा है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसे मज़ीद उसे तरक्कियाँ दे। मगर यहाँ पर एक बात कहूँगी कि लड़के के हाथों पर मेहंदी लगना जायज़ है, लड़की के हाथों पर मेहंदी लगना जायज़ नहीं है। सोने के वक्त पे जब लड़की को सोने की अंगूठी पहनाई तो इनको उस टाइम इस्लाम याद आया है। ठीक है, जिथे इस्लाम इन्होंने याद आया, बंदा इन्होंने पूछे औरतों को गालां कढ़ना जायज़ है, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਤ ਇਜ਼ੂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਵਤ ਜ਼ਿੱਲੂ ਮੰਤਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ नहीं लेंगे। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, आखिर कौन सी घड़ी आ गई जी? मौसम ने क्या हकीकत बताई, उसमें कितनी हकीकत थी, कितना झूठ था? मौसम ने अपनी वीडियो में क्यों नहीं बताया कि उसकी बहन की शादी कहाँ हो रही है, किस किस का मुंह बने हुए थे जो मौसम ने किया इतराफ। आज सारी हकीकत आपको पता चल जाएगी। आज का पार्ट 2 बहुत मजे का, बहुत चटखारेदार होने वाला है। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, इसमें काफी वॉइसें आपको सुनने को मिलेगी। पहले आपने रुबीना सिस्टर की वॉइस सुनी, अब आप ये वॉइस सुने। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और आज सुबह से लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। अगर मेरे फेस पे लाइट कम आ रही हो या मैं नजर ही ना आ रही हूँ तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को कीजिएगा एंजॉय। आपने रुबीना सिस्टर की वॉइस सुन ली, वो क्या वॉइस थी, क्या नहीं, रुबीना सिस्टर की नहीं, मौसम की आपने वॉइस सुनी। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वॉइस मौसम इतना उखड़ा हुआ क्यों था। और उससे पहले आपने रुबीना की भी वॉइस सुन ली,
सबके कानों से धुएं निकल आए होंगे ये सारी बातें सुन के। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात। अब पहले सबसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट थे, बहुत ज्यादा कि सिस्टर दुल्हन के हाथों पे तो मेहंदी नहीं थी। हम भी छम छम छमिया से ये पूछते हैं, जब 3 हफ्तों से आप लोग ढोलकी पे ढोलकी और झूमर पे झूमर मार रहे थे और लगा रहे थे, व्यूज भी आप लोगों ने ले लिए, डॉलर भी आप लोगों ने कमा लिए, उसमें से 120 की या 150 की मेहंदी, कौन मेहंदी आती है, वो आप अपनी भांजी को तो भिजवा देते, वो बेचारी हाथों पे मेहंदी लगा लेती, फिर अंगूठी अंगूठी खेल लेती। पर ना जी ना, दूल्हे ने मेहंदी लगा ली, दूल्हे की पूरी फैमिली यानी खालाएं, चाचे, चाचियां, सबने स्पेशल पार्लर वाली भी घर में बुला ली, इतने इतने मेकअप भी थोपा थापी करा लिए, पर दुल्हन वही गंदी की गंदी, ना कपड़े प्रेस। आखिर मेहंदी क्यों नहीं थी? अहमद भाई ने सुबह वाला व्लॉग बनाया, अहमद भाई ने उसमें कहा कि दुल्हन के हाथों पे मेहंदी नहीं थी, इसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो कख नहीं उन्होंने बताया, पीछे से तेजी से मेरी बेटी निकल गई है क्योंकि लाइट आई है, मोटर चलानी है, पानी ना आया तो फिर आपको पता है बाथरूम हो जाएंगे, चंगड़ फैमिली के बाथरूम, पानी बट भाई ढेर सारा चाहिए। चलें जी, ये तो हो गया, मजाक हो गई, अजान मिलते हैं अजान। थे कि हमने आपसे पूछा था कि आपकी सिस्टर का निकाह कहाँ हो रहा है, तो आपने झूठ बोला था। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से लेकर आखिर तक, कल तक भी मैंने किसी को भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो है ना मैंने ना किसी को झूठा जवाब दिया है, ना किसी को सच्चा दिया है। मैंने किसी को जवाब ही नहीं दिया। जिन्होंने दिया है वो आपस में बात, क्योंकि जो है ना मैंने ना किसी को झूठा जवाब दिया है, ना किसी को सच्चा दिया है। मैंने किसी को जवाब ही नहीं दिया। जिन्होंने दिया है वो आपस में बातें कर रहे होते थे, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, ना ही किसी को झूठ बोला है। मैंने जो है इन मौके पे आया है सच, वही सच ही बताया है। मैंने किसी को झूठ नहीं बोला है। तो उसके लिए जो है ना, अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो कुछ बहन भाई पूछ रहे थे कि कल वाली वीडियो में जो है ना बहुत सारे जो है ना कुछ झूठे कह रहे थे, कोई कुछ सवाल कर रहे थे। कुछ का तो मैंने जवाब दे दिया है पहले ही। तो कुछ ये है कि जैसे ही हमारे माली हालात अभी ठीक नहीं है, जैसे कुछ बेहतर होंगे। अभी काफ़ी देर है, उससे पहले जो है ना मारिया के निकाह से पहले हमने जो है आसन भाई की शादी करनी है। तो जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह हम करेंगे। आगे भी जो होगा वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और लिहाजा हम यही कहना चाहेंगे कि जो राज़ी था, जो नहीं राज़ी था, आए तो सब हुए थे, सब राज़ी थे, कुछ उनकी तरफ से, कुछ हमारी तरफ से। बस इस बात पे जो है ना आप जो भी मामलात हैं हमारे, उन पे आप जो है ना हमारी तरफ से कोई सवाल ना उठाया करें। आप सबका जो है ना बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ना हम किसी को कुछ कहते हैं, ना हम कोई झूठ लगाते हैं, ना हम कोई फरेब लगाते हैं, ना हम कोई ड्रामे करते हैं, ना हम किसी को कोई कुछ नहीं कहता। हम अपना बस काम कर रहे हैं। हम यही कहते हैं, ना कोई हमें बुरा भला कहे, ना हम किसी को कहते हैं। बाकी जैसे सिस्टम है हर किसी का अपना चल रहा है। मैं बस यही मेरा मैसेज था आप सब तक पहुंचाने का कि आपने जो है ना, हम भी यही कहते हैं कि आगे से बहन भाई जो है गलत कमेंट हमारे लिए ना। हाँ जी, ना हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं, ना इतने वायरल हैं कि हम कह सकें कि भी किसी के ऊपर या इल्ज़ाम लगाएं या किसी की, हमारी ये आदत नहीं है। जो अजान हो रही थी तो हम बात कर रहे थे कि अहमद भाई ने फिर वो रीजन नहीं बताई कि मेहंदी क्यों नहीं लगी। यहाँ आप सबने मौसम की भी वॉइस सुन ली, यानी कि सारा काम तैयारी के बगैर एमरजेंसी में किया गया, चटपट किया गया, क्योंकि रिएक्शन वालों ने रिएक्शन दिया हुआ था, लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि ये झूठ है। जैसे कल वाली वीडियो में आपने देखा कि एक सिस्टर का मैंने वीडियो
वॉइस के साथ लगाया था, जो कह रही थी 2 साल से मैं सुन रही हूँ। ये 2 साल में इन्होंने चोरियां भी कितनी कराई, रुबीना को नाचने वाली भी बनाया। रुबीना 3000 लेके निकली, फिर 6.5 लाख का जेवर रुबीना पे डाला गया, फिर मोबाइलों की चोरी आ गई, फिर उसके बीच में ये मुजम्मिल के नंबरदार जो भी है, बस दार इदार, मतलब इनका स्पेशल जो बेटा है उसकी शादी का कंटेंट था। फिर उन्होंने कुछ तो अब दिखाना था, पब्लिक का मुंह बंद करने थे, यूट्यूब फैमिली के मुंह बंद करने थे। किया तो इन्होंने कंटेंट के तौर पे था ये काम। मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने रिश्ता नहीं मांगा हुआ था, इन्होंने रिश्ता मांगा हुआ था, पर आपने नकाब में देखा मुखलिस भाई के फेस पे कोई खुशी, कोई स्माइल नहीं थी। क्यों? इंसान की बॉडी लैंग्वेज, वो इंसान के फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं कि वो कितना खुश है, कितना राजी है। पर ये सिर्फ पब्लिक का मुंह बंद करने के लिए नका हुआ था, इसलिए तैयारी कोई नहीं थी, इसलिए दुल्हन के हाथों पे मेहंदी कोई नहीं थी। अगर चैनल की बात की जाए तो मोहसन का चैनल बहुत छोटा है, आखिर उसको भी तो कंटेंट मिला था। उसके लिए तो मुखलिस, यानी उनकी फैमिली में मुखलिस बड़ा यूट्यूबर है, 27,000 उसके सब्सक्राइबर हैं। मोहसन भी तो व्यूज कमा सकता था। आखिर मोहसन ने क्यों नहीं अपनी पब्लिक को बताया कि उसकी बहन की शादी कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, किसके साथ हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही। आखिर उसने क्यों अपनी वीडियो में ये इंकशाफात क्यों नहीं किए? जो आज वॉइस चलाई उसने कहा ना तो मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना मेरी कोई वायरल होती है वीडियो, फिर मैं ये क्यों दिखाऊं, क्यों बताऊं। जो आया आप लोगों के सामने आ गया, कितना इसमें सच है कितना झूठ है आप खुद पता लगवा लें। और इस शादी में कुछ लोग राजी हैं, कुछ नहीं राजी, इसका भी आप ही पता लगवा लें। जो लोग आए थे उनके मुंह सीधे नहीं हुए, उनके मुंह उठ के घोड़े जैसे थे, इसका भी आप पता लगवा लें। अब वो जो लोग आए थे उनके मुंह सीधे नहीं हुए थे। आखिर मोहसन ने ये बात किसको की? प्यारे बहन भाइयों, किसको की बताए कमेंट करके जी। किसको? मैं नाचूं छम छम छम, ये तो देवानंद नंद नंद हो गया। मैं नाचूं छम छम छम, छमिया को की, क्योंकि आपने देखा जिधर मोहसन छमिया के कैमरे में आता था कैमरा कट, छमिया वहां खामोश। छमिया को सबा बुलाती रही कि छमिया, इस फुलियों को फुलियां कहते हैं कि थुलियां कहते हैं। छमिया क्वाइट, छमिया की वहां कोई चहचहा नहीं, कोई पीपा नहीं, और सबा चहकती लहकती महकती नजर आई। और आपको लगा कि वाकई ये खुशी थी। आज मोहसन का ब्लॉग देख के लगा कि इस घर में कल निकाह था, या आपको किसी और का अल्ताफ लंबे बालों वाली आपको कहा ना कि अपने घर की औरतों पे यकीन नहीं है, खुद ही ये औरतों वाले काम करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाल रखते हैं, वो भी नहीं गए। रुबीना सिस्टर के वॉइस मैसेज पे गौर कीजिएगा और सारा समझिएगा। ऐसी और भी कितनी मेरी बहनें, मेरी सब्सक्राइबर हैं और जिनसे ये माल बटोरते रहे हैं, भीग लेते रहे, उनके वॉइस मैसेजेस हैं मेरे पास। आहिस्ता आहिस्ता वो मैं सब लगाने वाली हूँ। अब ये सीरियल चलेगी, इसके पार्ट बनेंगे। आखिर ये सब ड्रामा और ये नकाब बिल्कुल इसलिए था कि छमिया ने गले में ढोल डाल लिया था, अब किसी तरीके से बजा के पब्लिक को खामोश करवाना था। पर यहाँ ये कहती जाऊं कि अहमद दीन ने फिर गलती की। अहमद दीन ने 2 से 3 दफा कल वाली वीडियो में रिपीट किया और आज वाली वीडियो में भी रिपीट किया कि जो लोग कमेंट करके हमें कहते थे कि ये झूठ है, शादी नहीं होगी, अब लंबरदार की उनकी बहनों के साथ शादी होगी, और वो जिनको इसने ये लफ्ज बोले वो आ गए हैं अब एक्शन में। अब ये एक्शन का रिजल्ट बहुत जल्द अहमद दीन को मिलने वाला है। वो भी आपको अपने चैनल पे बताऊंगी कि आखिर वो बंदा कौन था। वो कोई सरकारी ऑफिसर था जिसको इसने जवाब दिया, और आपको पता है कि सरकार को छेड़ना कितना महंगा होता है। और ऑलरेडी हमारे पास जो इसने आशा अहमद को गंदी गालियां दी थी वो वीडियो भी पड़ी हुई है, और जो मैंने वॉइस लाई थी, क्योंकि आप कहेंगे कि वो गालियों वाली, तो मेरे ये चैनल को फैमिलीज देखती हैं, लेडीज मेरी बहनें देखती हैं, वो गालियां मैं यहाँ नहीं चला सकती, पर जहाँ वो गालियां भेजनी चाहिए वहां वो पहुंच गई हैं, वो सबूत वहां पहुंच गए हैं।
अब यहाँ बात करते हैं कि फिर अहमदीन भाई ने कहा, जब लुक चेक की और सहबा भाभी की लुक उनको बहुत प्यारी लगी, असलम की लुक उनको प्यारी नहीं लगी, क्योंकि उनको औरतों की लुक प्यारी लगती है। और सहबा भाभी ने भी रिपीट किया कि इसको औरतों की लुक प्यारी लगती है। इस बंदे की आंखों में उम्र के बाद भी गंदगी और इसकी नेचर में ठरकपन खत्म नहीं हुआ। और जब इसकी सास कोच में से उतर रही थी तो कह रहा था, सज्जना नु वेख के अखा नु ठंड पैंदी है। इसको नहीं पता कि सास भी माँ होती है, भाभियां भी, बड़ी भाभियां भी माँ होती हैं। आपने नोट किया होगा, मैं आपको याद करवा दूं, मेरी ओल्ड वीडियो में रुबीना सिस्टर के मैंने वॉइस चलाए थे कि जब वो ऑपरेशन के लिए गई थी और ये भाभी और देवर घर में थे। आपने कल वाली वीडियो में भी नोट किया होगा, कैमरा सबा और समीना भाभी पे टिका हुआ था, थंबनेल पे भी वही थे। आखिर इन्होंने कहा कि सबा, सहबा और समीना प्लकिंग यानी आइसब्रो कराने के बाद एक जैसी नजर आती हैं। भाई क्यों? वो तुम्हारी माएँ हैं और सबा तुम्हारी बीवी है, क्यों तुम्हें इनमें फर्क नजर नहीं आता? क्यों ये तुम्हें एक जैसी लगती हैं? बात करते हुए पहले सोचा करो, फिर उसको तोला करो, फिर बात किया करो, क्योंकि देखने वाले बहुत बारीकी से तुम लोगों की वीडियो देखते हैं और रिएक्शन वाले फिर पॉइंट नोट करते हैं कि कहाँ फर्क आपको महसूस होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो और आज का पार्ट 2 आपसे प्रॉमिस किया हुआ था। अगर पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो आपने भी करना है छम 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 और लिख देना प्यारा सा कमेंट के पार्ट 3 भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई इंकशाफात हैं जो आपको सुनाने हैं और वो कुछ प्रूफ और सबूत हैं जो आपको दिखाने हैं। अगर आप इनकी मजीद हकीकत जानना चाहते हैं तो पार्ट 3 के लिए लिखिएगा और वॉइस बार बार सुनिएगा कि सबा के गाने क्या कहते थे, और मौसम की वॉइस भी लाजमी सुनिएगा कि अगर किसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा था, कौन ना खुश था, आ तो गए, पता नहीं वो राजी थे या नहीं थे। बड़ा कुछ मौसम ने अपनी बातों में कह दिया, समझने वाले समझ जाएंगे। और बताइएगा कि पार्ट 2 कैसा लगा, और वीडियो बंद नहीं करनी। अभी एक और वॉइस आपने आगे सुननी है जो इनको गिफ्ट भेजा है मुखलिस की सिस्टर, वो सहाफी खातून थी ना जिनको मुखलिस भाई ने गालियां दी थी, उन्होंने भी शादी के लिए गिफ्ट भेजा है, वो गिफ्ट भी आपने सुनना है। और अगर आपको पार्ट 2 अच्छा लगा है, रिएक्शन अच्छा लगा है, तो ठोक के करना है लाइक। और नए साल की खुशी में, नए साल का पहला दिन है, नए साल पे सोनू सिस्टर के लिए गिफ्ट तो होना चाहिए। और ठोक के करना है सब्सक्राइब के 10,000 सब्सक्राइब कर दे 1-2 दिन में पूरे। थोड़े से रह गए छोटू से, जैसे छमिया लोगों का ढोल बड़ा था, रोला बड़ा था और नका यूं आया यूं गया, बस इतने सही हैं। कर देने 10,000 सब्सक्राइबर, फिर हम भी करेंगे छम छम, नहीं करेंगे सेलिब्रेशन 10K की। आपके बाएं हाथ का खेल है, आपने इतना प्यार दिखाया और प्यार दिखाएं और 1-2 दिन में कर दे सोनू की दुनिया के 10K पूरे। फिर काटेंगे केक, करेंगे सेलिब्रेशन, और वो सेलिब्रेशन व्लॉग आएगा सोनू व्लॉग के ऊपर। फिर वहां से हम करेंगे अपनी व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत, वहां से बनाएंगे हम मजीद अपनी फैमिली को बड़ा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सोनू के व्लॉग को भी करना है सब्सक्राइब, यानी कि इसके 10 पूरे करते हुए 10K सोनू के व्लॉग को भूल जाएं, सेलिब्रेशन का व्लॉग पहला उधर ही आएगा। चलें जी, जरा करो, वो कहते ना पत्ती ठोक के ते मिठा रोक के, लाइक भी ठोक के ते सब्सक्राइबर तेज गाम आरान। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज। इस कुत्ते के बच्चे की जुबान कितनी गंदी है। अल्लाह मियाँ इसकी जुबान पे लकवा डाले, इसके सारे घर वालों की जुबान पे लकवा डाल दे। बेगैरतों के, इन लोग की इज्जतें हैं, दूसरों की तो कुछ है ही नहीं है। बेगैरत कहीं के, मैं समझती हूँ जिसको इसने कहा है बेगैरत के बच्चे ने, वही ना मैंने कहा है ना, ये है ही कुत्ती माँ का बच्चा।